हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़ी अपडेट्स और जानकारी की। बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपी का ये ऑर्डर, जिसमें ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। और मुख्य रूप से ये ऑर्डर है स्पेशल मैटरनिटी लीव को लेकर, तो महिला कार्मिकों के लिए। तो उनको अब केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि उनको 60 दिन का स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए चाइल्ड। अगर किसी गर्भ जो भी ठहरता है उसके दौरान जो बच्चे की डेथ हो जाती है, तो इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तो ग्रांट ऑफ 60 डे स्पेशल मैटरनिटी लीव महिला कार्मिकों के लिए 60 दिन का स्पेशल, उनको जो एक संबल प्रदान करने के लिए भावनात्मक, इसके लिए 60 दिन का उनको स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा अगर चाइल्ड की डेथ हो जाती है। तो इस डिपार्टमेंट में विभिन्न प्रकार के जो भी आदेश हैं मैटरनिटी लीव के संबंध में, उसी के संबंध में ये भी अब लागू रहेगा। नवीन नियम 2 सितंबर 2022 का ये ऑर्डर। दिस डिपार्टमेंट हैज़ बिन रिसीविंग सेवरल रेफरेंसेज एंड क्वायरीज रिक्वेस्टिंग ऑफ क्लैरिफिकेशन pertaining to grant of leave maternity leave in case of death of a child soon after birth or stillbirth. The matter has considered in consultation with Minister of Health and Family Welfare, keeping in view the potential emotional trauma caused due to stillbirth or death of a child soon after birth, which has a far-reaching impact on the mother's life. It has now been decided to grant a special maternity leave of 60 days to the female central government servant in case of death of a child soon after birth or stillbirth on the following condition। इसके लिए कुछ कंडीशन भी रखी गई है, उनको भावनात्मक रूप से सहयोग मिले, इसलिए सरकार ने उनको स्पेशल मैटरनिटी लीव 60 डे का स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। In case a maternity leave has already been availed by a female central government servant and her leave continue till the date of expiry of child soon after birth, stillbirth, the maternity leave already availed till death of the child may be converted into any other kind of leave available in her leave account without insisting for a medical certificate, and a special maternity leave of 60 days may be granted from the date of expire of child soon after birth, stillbirth। And second condition है, in case the maternity leave has not been availed by a female central government servant, 60 days of special maternity leave may be granted from the date of expiry of child soon after birth, stillbirth। The condition for death of a child soon after birth may be defined as up to 28 days after birth. A baby born with no sign of life at or after 28 weeks of gestation may be defined as stillbirth। इसके साथ ही कुछ और भी आपको निर्णय बता देते हैं जो इनमें तय किए गए हैं। द बेनिफिट ऑफ स्पेशल मैटरनिटी लीव शैल बी एडमिसिबल ओनली टू ए फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट्स विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। तो बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जिनके लिए 2 बच्चे या लेस देन 2, 2 से कम होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ओनली 2 फीमेल, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है ये स्कीम, फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन एंड फॉर चाइल्ड डिलीवरी ओनली इन ऑथोराइज हॉस्पिटल। Authorized hospital defined as government hospital or private hospital impaneled under Central Government Health Scheme CGHS. In case of emergency delivery in non-impaneled private hospital, production of emergency certificate is mandatory. These orders shall be applicable to government employees appointed to the civil service and post in conjunction with the affair of the Union of India in terms of Rule 2 of the CCS Leave Rules 1972 with the effect from the date of issue of OM the past cases, wherever settled in respective ministries and departments need not to be reopened। तो ये पूरा इंग्लिश का वर्जन है और लगभग समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ हिंदी में भी आपको बता देता हूँ किस प्रकार से लीव के रूल तय किए गए हैं। स्पेशल मैटरनिटी लीव जो महिला कार्मिकों को मिलेंगे, सरकारी महिला कार्मिकों को, केंद्र सरकार की कर्मचारियों के लिए है ये। तो ये ऑर्डर है जन्म और मृत, जन्म के तुरंत बाद बच्चे की अगर मृत्यु होती है उसके मामले में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने के संबंध में है। इस विभाग के द्वारा जन्म और मृत, जन्म के तुरंत बाद किसी बच्चे की मृत्यु के मामले में छुट्टी और मातृत्व अवकाश को लेकर कई जो है कह सकते हैं स्पष्टीकरण मांगा गया, अनुरोध किए गए और प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा परामर्श लिया गया और जन्म तो परामर्श की दिया गया है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे के
मृत जन्म या मृत्यु के कारण होने वाले संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए जिसका मां के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, निर्णय लिया गया है कि एक महिला केंद्रीय कर्मचारी जो है उनको 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाए। सरकारी कर्मचारी के जन्म के तुरंत बाद या मृत जन्म के बाद निम्नलिखित शर्तों पर बच्चे की मृत्यु के मामले में उनको ये छुट्टी दी जाएगी। जैसे कि यदि किसी महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी द्वारा पहले ही मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा चुका है और उसकी छुट्टी जन्म या मृत जन्म के तुरंत बाद बच्चे की समाप्ति की तारीख तक जारी रहती है, तो बच्चे की मृत्यु तक पहले से प्राप्त मातृत्व अवकाश को किसी भी में परिवर्तित किया जा सकता है और उसके अवकाश के खाते में चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए आग्रह किए बिना अन्य प्रकार की छुट्टी उपलब्ध है और 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश जो है जन्म या मृत जन्म के तुरंत बाद बच्चे की समाप्ति की तारीख से दिया जा सकता है। सेकंड कंडीशन है, यदि किसी महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी द्वारा मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठाया गया है तो ऐसे में जन्म या मृत जन्म के तुरंत बाद बच्चे की समाप्ति की तारीख से 60 दिनों का विशेष अवकाश जो है मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। इसके साथ ही अगली कंडीशन है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की स्थिति को जन्म के 28 दिन बाद तक परिभाषित भी किया जा सकता है। और साथ ही है, गर्भ के 28 सप्ताह के बाद या उसके बाद जीवन के कोई लक्षण नहीं पैदा होने वाले बच्चे को स्टिल बर्थ के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ कंडीशन और भी है जो आपको समझा देते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स, विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ जो है केंद्र सरकार की केवल उस महिला कर्मचारी के लिए ही स्वीकार होगा जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हो, यानी 2 से कम जीवित बच्चे हो। और विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ महिला कार्मिकों के लिए है जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हो और केवल अधिकृत अस्पताल में ही बच्चे की डिलीवरी की गई हो। साथ ही अधिकृत अस्पताल को लेकर क्लेरिफिकेशन ये है कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना जो चलती है CGHS के तहत जो सूचीबद्ध है सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल वो है। साथ ही गैर सूचीबद्ध निजी अस्पताल में आपातकालीन प्रसव होता है तो आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये आदेश इस कार्यालय के ज्ञापन जारी होने की तिथि से CS नियम जो है 1972 के 2 बार संघ के मामलों में सिविल सेवा और पदों पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे। पिछले मामले जहां भी संबंधित मंत्रालय में निपटाए गए हों को फिर से खोलने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। मैटरनिटी लीव को लेकर सरकार ने रूल्स बनाए हैं महिला कार्मिकों के लिए। तो अच्छा है, ये कह सकते हैं भावनात्मक संबल मिलेगा महिला कर्मचारियों को कि उनके ऐसी स्थिति होती है, भगवान ना करे किसी के साथ इस प्रकार की घटना हो। तो किसी भी महिला कर्मचारी के मतलब कोई बच्चा जन्मता है, मृत जन्मता है या जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामले में अब उनको 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश जो है मैटरनिटी लीव जिसे कहते हैं स्वीकृत करा जाएगा। ये केंद्र सरकार का निर्णय है। हो सकता है इस प्रकार के आदेश राज्य सरकार भी जारी करे, वो राज्य सरकार के ऊपर। फिलहाल केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए, महिला कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे।